چلے اس طرح کریں 9-10 محرم کا روزہ ہی رکھ لیں کہ میں ان کی یاد میں اس عبادت میں مشغول ہو گیا ہوں، کچھ تو کریں، اور یہ بڑی برکت والا روزہ ہے۔ دوسری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ ہمیں نا نبی پاک کی اولاد کا پیار سکھایا ہی صحابہ نے ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ سکھایا ہی، جتنی ان کی فضیلت کی روایتیں ہیں روایت ہی صحابہ نے کی، بتائیں ہی صحابہ نے، یہ محبتیں آئیں ہی ادھر سے۔ ہمیں حضرت عمر نے تو سکھایا ہے حسنین کا اکرام کیسے کرنا ہے، حضرت ابو ہریرہ نے تو سکھایا ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے۔ کچھ لوگ نا بڑا مکروہ دھندا کرتے ہیں، وہ اپنی تقریر چمکانے کے لیے مشاجرات بیان کرتے ہیں۔ میں آج بتاؤں گا حضور کے صحابہ کی شان کیا ہو۔ بھئی آپ کیا بتائیں گے، وہ تو اللہ نے بتا دی ہے قرآن میں، وہ تو احادیث میں آ گئی۔ میں بتاؤں گا اہل بیت کی عظمت کیا ہو، بھئی آپ کو یہ نوکھی چیز بتائیں گے؟ وہ تو سارا کچھ قرآن مجید نے بیان کر دیا، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آپ ایک راوی ہیں، آپ روایت کریں، آپ بیان کریں پڑھ کے، آپ انتشار کا باعث نہ بنے، عقیدتوں کے فروغ کا باعث بنے، محبتوں کے فروغ کا باعث بنے۔ یہ سارا کچھ سکھایا ہی صحابہ نے، آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ صحابہ حضور کی اولاد کا اکرام کرنا؟ یہ صحابہ نے ہی بیان کیا، صحابہ سے ہی ہمیں ملا ہے، یہ صحابہ کی ہی طرز زندگی سے ہم نے سیکھا ہے۔ توجہ کیجئے گا بات پر۔ کوئی کام پڑ گیا حضرت امام حسن کو حضرت عمر فاروق سے، امیر المومنین تھے جناب عمر، تو آپ تشریف لے گئے ملاقات کے لیے حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں۔ جب پہنچے نا تو دروازے کے باہر آپ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے تھے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم کے صاحبزادے سے کہنے لگے آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ والد صاحب کے پاس نا کچھ مہمان آئے ہیں، تو کوئی میٹنگ چل رہی ہے، کچھ گورنر حضرات بیٹھے، تو مجھے انہوں نے کہا تم ذرا باہر کھڑے ہو، کوئی بات کر رہے ہیں وہ، تو میں آ گیا ہوں۔ تو امام حسن فرمانے لگے ٹھیک ہے، میں بھی ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، مجھے کوئی کام تھا۔ تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے نہیں آپ چلے جائیں، آپ تو حضور کے شہزادے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ مصروف ہیں، انہوں نے کہا بھی، لیکن امام حسن واپس تشریف لے گئے۔ جب جناب عمر فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتایا کہ امام حسن آئے تھے، تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے روکا کیوں نہیں، مجھے بلایا کیوں؟ عرض کی حضور میں نے ان سے کہا تھا، عرض کیا تھا، پر وہ چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم نہ گھر گئے نہ مسجد گئے، سیدھے امام حسن کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، سیدنا امام حسن تشریف لائے، شہزادے آپ آئے تھے تو ملے بغیر آ گئے، کہا آپ مصروف تھے، میں نے کہا مسجد میں مل لوں گا، تو جناب عمر جذباتی ہو گئے، کہا آپ کو ملنا چاہیے، حضور آپ کے شہزادے بھی باہر کھڑے تھے۔ فرمایا میرا اور آپ میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ ہے؟ کیا اس کے نانا کا نام محمد عربی ہے؟ ہمیں سکھایا ہی صحابہ نے، تم کہاں سے لے آئے ہو بات، ان کا اختلاف تھا، قربان جائیں۔ پھر حضرت عمر اور جذباتی ہوئے، سر سے امامہ اتار لیا، کہنے لگے شہزادے عمر کے سر پر یہ جو عزت کے بال ہیں یہ آپ کے نانا کے اگائے ہوئے، تو جب تک صحابہ کے دروازے پہ حاضری نہیں دو گے اہل بیت کی محبت کا پتہ کیسے چلے گا، ادب کا پتہ کیسے چلے گا، ان کی محبتوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، فرماتے ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو جس کمرے میں حضور جلوہ فراز تھے نا وہاں جگہ کچھ کام تھی، اور صحابہ بالکل حضور کے مقدس قدموں میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور باہر بھی جہاں تک جگہ تھی کونوں میں دیواروں سے لگ لگ کے صحابہ بیٹھے تھے۔ اچانک ایسا ہوا کہ مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے، ہر صحابی چاہ رہا تھا میں اٹھ کے مولا کائنات کو جگا دوں، کیونکہ سب جانتے تھے علی کی محبت ایمان ہے،
इनका बुग़्ज़ निफाक है। हर एक चाह रहा था मैं उठूं, अपनी जगह छोड़ूं, गुंजाइश बनाऊं और शेर खुदा को बिठा दूं, कुर्बान जाइए। सारे ही चाह रहे थे, पर पता है सबसे पहले कौन उठे? जो नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा रखते हैं। अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक, जनाबे सिद्दीक अकबर सबसे पहले उठे, अपनी जगह खाली की, मौला अली का बाजू थामा, अपनी जगह पे बिठाया। अब सहाबा का मजमा है, हुजूर जलवा फिराज है, कोई तबसरा कर ही नहीं सकता। हुजूर खुद ही बोले, फरमाया देखा तुमने मेरे अबू बकर ने क्या किया, देखा तुमने या रसूलल्लाह, देखा। हुजूर फरमाने लगे, कोई इज्जत वाला ही किसी की इज्जत को पहचाना करता, साहिब इज्जत ही किसी को इज्जत देता। अजीजों, ये तो हमें इन लोगों ने सिखाया है। इसलिए वो बाज लोग ऐसे हैं कि उन पर अब गुस्सा नहीं आता, अब तो तरस आता है कि यार तुम क्या धंधा कर रहे हो तकरीर चमकाने के लिए। इन लोगों के माबैन तुम इख्तलाफ बयान करते हो, जिनके बारे में कुरान ने कह दिया अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, ये काफिरों पे सख्त हैं, आपस में तो बड़े रहम दिल हैं। तो जिनको कुरान मजीद कह रहे रहम दिल है, नस आ गई, तुम मजीद कोई नया उन्वान क्या बयान करते हो? तो भाइयों, एक तो ये कि इनसे एहतराम करें, और दूसरा ये कि समझें इनकी मोहब्बत और अकीदत हमें किसने सिखाई। तीसरी बात, बहुत मुश्किल नहीं है फलसफा करबला समझना, क्योंकि लोग पैगाम इमाम हुसैन पर अमल नहीं करना चाहते, इसलिए कहते हैं बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। वो हमारे पास सूफी ऐसे हैं दरवेश, कहते मार्फत नू समझना सारे दे बस दी गल नहीं, ताकि कोई बंदा इस पैंडे पवे ही ना। वो अल्लाह के बंदे, ये मार्फत क्या है? सादा सा इखलाके हंसना है, बातन को संवारना है, इखलास पैदा करना है, आजिज़ी पैदा करना, यही है सारा। आप क्या सिखाना चाहते हैं? मसलन सिर्फ आप भगा रहे हैं लोगों को, और अनोखे अनोखे लोग, यानी बाज़ोकात ना हंसी आती है। बेचारा एक दिन भी किसी इदारे में नहीं गया, किसी उस्ताद के पास नहीं बैठा, कुछ पता नहीं, और वो क्या कह रहा है, कहना मौलवियों नू की पता मार्फत की होती। मैं कह जेड़ी तेरे को लिया वाकई किसी नहीं पता। बां जिल्मों जो करे फकीरी, वो काफिर मरे दीवाना हो। वो जो तू कह रहा है ना, वाकई ओदा नहीं पता, तू सच है। तो अजीब लोग हैं, और जनाब वो लोग बड़े हैरान होते हैं कि बड़ी हैरत अंगेज बात कर रहा है। तो समझ लेना है, आपने गौर करना है कि वाकई करबला वाज़े है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकसद वाज़े। इमाम हुसैन निकले थे कि जुल्म नहीं करने देंगे, जबर नहीं करने देंगे, बर्बरियत नहीं करने देंगे, गैर इखलाकी अंदाज नहीं इख्तियार करने देंगे। कोई बादशाह जबर के जोर पर अगर मुसल्लत होगा तो मुसल्लत नहीं होने देंगे। जुल्म जबर और बर्बरियत के खिलाफ निकले इमाम हुसैन। और फिर जिन रस्तों पे थोड़ी मुश्किल आए ना, गाड़ी चलाने वाले का पता भी उन्हीं रस्तों पे चलता है, सीधी सीधी तो सारे चला लेते हैं। ये स्पीड ब्रेकर ज्यादा हो ना, वो एक दफा हम सिंध गए हुए थे कुछ दिनों के लिए, मुख्तलिफ महफिल में 5-6 दिन लग गए। तो वापसी पे सखर पे मोटरवे से चढ़ गए। तो मैंने अपने गाड़ी चलाने वाले दोस्त से कहा, लो अब लाहौर तक आसान है। तो कहने लगा, हज़रत साहब है मुश्किल जी। मैं कि क्यों? कह लगा तो नींद आने लग पैंदी सीधी सीधी जो ही। वो जेड़ा अचानक चिंची वाला सामने आंदा है ना, बंदा जरा जागदा रहता है। अचानक स्पीड ब्रेकर आता है तो आंखें खुली रहती, जिसमें शक होता है ना कि इन्हें तो इशारा भी नहीं लाना, तो बंदा जरा एहतियात से चलाता है। लेकिन ये बिल्कुल ही सीधी सीधी है, तो इसमें क्या होता है, नींद आने लगती। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, अल्लाह कहता है मैंने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया। तेरी जिंदगी का हुस्न ही ये है कि तू मुशक्कत करे, तू काम करे। मैंने पहले भी इसी मकाम पे कहा था, मुझे याद है, फिर कहता हूं, जितना बंदा बड़ा होता है उसका दुख भी उतना बड़ा होता है, उसका जख्म भी उतना गहरा होता है। आपका ख्याल होता है फलां बड़ा पॉपुलर है, बड़ा मशहूर है, बड़ा आदमी है, ये तो कभी आप उससे मिले, ये उसके पास बैठे, आपको पता चले कि जितना इंसान बड़ा होता है उसकी तकलीफें भी उतनी
बड़ी होती हैं उसके जख्म भी उतने बड़े होते हैं, और जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। ये मुश्किल काम है, आपको इससे गुजरना है और इस मुशक्कत को झीलना है और ये जबर सहना है। इमाम अली मकाम निकले जुल्म के खिलाफ, तो फिर वो सारे काम उन्होंने सहे, परदेश भी काटा, बच्चों की भूख भी देखी। 4 चीजें इमाम हुसैन ने हमें सिखाई हैं करबला में। वैसे तो बड़ा कुछ सिखाया है आज की बज़्म के लिए। सबसे पहले इमाम हुसैन ने हमें सिखाया है कि जो चीज जीता करती है वो सब्र है। जिस चीज में अल्लाह की मदद शामिल होती है वो सब्र है। सब्र एक बहुत बड़ी तदबीर का नाम है। सब्र बहुत बड़ी ताकत है। जो आपकी सारी बातें सुन के तलक चुप कर गया है ना, उसके सब्र से डरो। जो बहू पूरे खानदान का जबर सह के सब्र करती है, उसके सब्र से डरो। जिसका फैक्ट्री का ऑनर और मालिक अपने मजदूरों पर जुल्म करता है, जबर करता है और उनकी तौहीन माज़ अल्लाह करता है, वो उनके सब्र से डरे। क्यों? इसलिए कि सब्र वाला बड़ा ताकतवर होता है। क्यों? कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह। मैदान करबला में क्या जंग थी? हजारों के लश्कर से 72 लोगों ने लड़ना था। वो जंग तलवारों से नहीं थी, नेज़ों की नेज़ों से नहीं थी। करबला में जुल्म की जंग सब्र के साथ थी, जबर की जंग सब्र के साथ थी। सब्र जीत गया और जुल्म हार गया। वो जो जीत गए वो हुसैन है, और जो 4 साल हुकूमत करके हार गया वो यजीद है। तो अजीज, सब्र अपनी जिंदगी में पैदा करें, हौसला। हमारे अंदर ना बड़ी बेसब्री आ गई है, मिनट मिनट पे तल्ख होते हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े। हौसला नहीं, बर्दाश्त नहीं, कुव्वत नहीं। दिल बड़ा करो, ज़रफ बड़ा करो, सब्र पैदा करें। आपको महसूस होगा कि आप ताकतवर होते जा रहे हैं। दूसरी बात हमें इमाम हुसैन ने करबला में सिखाई है इस्तिकामत। मुझे एक बच्चा कहने लगा कि मैं बड़े काम करना, कोई भी तोड़ नहीं चढ़दा। मैं क्या, तू बड़े रहने दे, कोई एक ही काम कर, लेकिन इस्तिकामत से कर। पत्थर भी कहीं पड़ा रह जाए ना मुस्तकिल, तो उस पर मिट्टी चढ़ती रहती है, वो ताकतवर हो जाता है, वजनी हो जाता है। एक कतरा टूटी से गिरे ना, नल कभी लीक हो जाए, कतरा गिरे तो नीचे पत्थर भी हो ना, गिरे जरा मुस्तकिल, उसमें भी सुराख कर देता है। हालांकि पानी से पत्थरों में सुराग, लेकिन सुराख क्यों हो गया? कि वो मुस्तकिल गिरा है। आप कोई काम मुस्तकिल करेंगे तो फतहयाब हो जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं? सुबह इरादा और है और दोपहर को प्रोग्राम और है और शाम को बिल्कुल ही और है, तो फिर कोई काम नहीं होता। मुस्तकिल आप काम करें, मुस्तकिल बुनियादों पे। चीजें आएंगी आपको कमजोर करेंगी, कभी औलाद, कभी माल, कभी वतन, लेकिन इमाम हुसैन से सीखो ना। इमाम अली मकाम एक जगह भी कमजोर नहीं पड़े। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु इतने ताकतवर रहे कि उन्हें अपने प्यारों की मैयतें भी उठा के लानी पड़ी, तो फिर भी वो इस्तिकामत के साथ खड़े रहे। कहीं खड़े तो हो, जरूरी नहीं है हालात हमेशा आपके मुताबिक यूं, हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं। वो एक बुजुर्ग थे, तो उन पर किसी ने कोई इल्जाम लगा दिया, इल्जाम झूठा था, तो प्यार करने वालों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। तो एक आदमी गुजरा तो फूल फेंक गया, तो शेख ने फूल उठा के वापस कर दिया। कहने लगे आजकल फूलों के दिन नहीं, पत्थरों के हैं, बड़ी जल्दी फूलों के भी आने वाले हैं, फिर फूल लेंगे तुमसे इंशाअल्लाह। अभी हमें ये दिन भी थोड़े से उसी तरह मुस्कुरा के गुजारने दो, दिन जो हमारे चल रहे। तो मेरे भाई याद रखिएगा और समझिएगा, इस्तिकामत से वक्त गुजारे, दिन तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तीसरी बात, अपनी औलाद की तरबियत सख्त बुनियादों पर करें। बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी करना
बाज़ औक़ात उनके साथ ज्यादती होती है। जी मैं जो इन्होंने कहा मैंने ला के दी है, आपने गलत किया भैया, आपको कुछ चीजें नहीं भी देनी चाहिए थी, ताकि जिंदगी में अगर इन्हें कभी कोई चीज ना मिले तो इनके दिल ना टूटे, इनको सब्र करना भी आए, हौसला भी करना है। कभी कभी आपको इनकार भी होना चाहिए। यानी वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पता होता है उनको इनकार भी कर दिया ना, जा तेरे हाल नहीं होना आते हो अपने, उन्हें मुड़ भी जाना किधरे नहीं, तो नहीं जाता बंदा, कई दफा नहीं बुलाता, नहीं जाता, नहीं ज्यादा मुलाकात करता, पता है बंदा अपना है। तो कुछ ऐसे ताल्लुकात होते हैं जो किसी कीमत पे टूटते नहीं। तो कुछ ऐसा करे कि औलादों की सख्त बुनियादों पर तरबियत करे। देखे ना, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की है अपनी औलाद की, तो किन बुनियादों पे सरवरे कायनात ने तरबियत की? हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इस बुनियाद पर तरबियत की कि अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह एक वक्त रोटी देना और एक वक्त फाका देना। फाके रहे, हफ्ता हफ्ता फाके रहे सैयदा पाक के घर में। कायनात के सबसे अजीम शहजादे तो ये थे ना, तो ये फाके से रहना और मुशक्कत से रहना। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद अपने बच्चों की तरबियत करते थे। हमारे गली में लड़ाई हो जाए ना और किसी पर जुल्म भी हो रहा तो हम अपने बच्चे से कहते हैं बेटा तू नहीं बाहर जाना, साड़ी नहीं लड़ाई। लेकिन जब बलवानियों ने इमामे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे हमला किया तो मौला अली खुद तलवारें दे के दोनों शहजादों को दरवाजे पे खड़े करके आए थे, बेटा तुम्हारे खालू का घर है, कोई शरीर अंदर नहीं जाना चाहिए। अपने बच्चों को तैयार किया मुशक्कत के लिए, मेहनत के लिए, जद्दोजहद के लिए। अपने बच्चों को बहुत ज्यादा दौलत जमा करके देने से बेहतर है इन्हें मेहनत का आदी बनाओ। बहुत पैसे दे के चले जाओ, ये मेहनत के आदी नहीं होंगे, ये तो महीनों में खा जाएंगे। असल काम तो ये है कि ये इल्म वाले हो, हुनर वाले हो, समझ वाले हो। ये इमाम अली मकाम ने किरदार अदा किया। मुझे एक दफा एक दोस्त ने पूछा कि उलमा कहते हैं कि 3 दिन पानी नहीं मिला और खाना नहीं मिला तो फिर भी वो बड़ी बहादुरी से लड़े, तो हम रोजा रखते हैं, असर के वक्त उठा नहीं जाता, वजूद साथ नहीं देता। तो इंसानी वजूद में इतनी ताकत नहीं होती कि 3 दिन खाए पिए बगैर वो गुजारा करे, तो कैसे हो गया? तो मैंने कहा आपकी बात फलसफे के लिहाज से दुरुस्त है, लेकिन अगर किसी की माँ ने 7-8 साल की उम्र में सिखा दिया हो 3 दिन भूखे प्यासे रहना, तो फिर क्या ख्याल है? अगर किसी की माँ ने ये सबक दे दिया, इमाम राजी को पढ़िए ना, 3 दिन रोजे रखे सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन और हुसैन ने, लेकिन जब भी इफ्तारी का वक्त आया दरवाजे पे कोई मांगने वाला आया सारा उसे दे दिया। 3 दिन मुसलसल रोजा है और इफ्तार के लिए कोई खास बंदोबस्त नहीं है। तो जिनको 7.5-8 साल की उम्र में आदत थी ना मेरे भाई 3 दिन भूखा प्यासा रहने की, उन्हें फिर करबला में भूखा प्यासा रहना पड़ा तो मुश्किल दरपेश ही कोई नहीं आई, उनको कोई तकलीफ। लेकिन जिन लोगों को आदत है कि मुझे अगर 10 मिनट के अंदर अंदर ना मिला तो मैं घर की फलानी चीज तोड़ दूंगा, तो भाई वो लोग फिर मैदानों में खड़े नहीं रह सकते। ये हौसले हिम्मत करनी पड़ती। चौथी बात जिस पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा, इमाम हुसैन ने हमें एक सबक दिया है कि जीत वक्ती नहीं होती, जीत दायमी होती है। मैदान में रहना शर्त है, जीत के आना शर्त। जवानों देख रहे हो मेरी तरफ, ये जो लोग 6 महीने किसी दीनी काम में लग जाते हैं वो कहते हैं इनकलाब क्यों नहीं आया। मुझे कुछ दोस्त कहते हैं आपको सालों हो गए तकरीरें करते, इनकलाब क्यों नहीं आया। मैं कहते तेनू नहीं ना नजर आउंदा, मैनू ते आया नजर आउंदा है। ये देखो ना, ये बेमौसमा फल है, जवान ही जवान आए हुए हैं सारे, ये इनकलाब नहीं। ये देखो किस तरह खड़े हैं चारों जानिब, चढ़ती जवानी और खूबसूरत दाढ़ी, तो इनकलाब ही है सारा। तो मेरे भाई आप किसको इनकलाब समझते हैं? बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आप मेहनत करते हैं तो दुनिया क्यों नहीं बदली, तो भाई नौकर का काम ये है कि मस्जिद टाइम पे खोले, अजान टाइम पे दे, नमाजी तो रब भेजा करता है। तो हम ड्यूटी दे रहे हैं और अजानें पढ़ रहे हैं, वक्त आएगा अल्लाह दिल बदल देगा, हालात ठीक हो जाएंगे,
पर हमने नौकरी नहीं छोड़नी, हमने ड्यूटी, समझ आ रही है, हमने बात करना नहीं छोड़ना, हमने जिक्र करना नहीं छोड़ना। हम जिक्र करते रहेंगे, इंशाल्लाह दिलों में उतर जाएगा। एक वक्त आएगा तब्दीली आ जाएगी। और मुझे तो दूर दूर से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं वो आप इतने साल पहले आए थे, आपने बात की थी, ये दाढ़ी मैंने आपके कहने पे रखी हुई है। तो फिर मैं सोचता हूं कि ये इनकलाब नहीं तो और क्या है। मेरे जैसे सबसे गुनाहगार के कहने में इतना बरकत है, तो नेक लोग बात करते होंगे तो कितनी बरकत होगी। तो मेरे अजीज, इमाम हुसैन ने हमें बताया है कि तुम ड्यूटी कर जाना। 4 साल यजीद रह भी गया ना तो इंशाअल्लाह ताला नाम हुसैन का ही रहेगा। इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि जिक्र हुसैन का ही रहेगा। तो मेहनत करें, फटाफट नतीजा ना मांगे, मेहनत करके नतीजा अल्लाह पे छोड़ दे, इंशाअल्लाह करम वाला नतीजा ही आएगा।